Okay, good morning students. Now, how are you all? Feeling chill? No problem. Your IITN Public School is going to give you some heat energy by conducting the online classes. Today I am here to conduct the English class with the topic verb. Now, let's start with the topic verb. What is this verb? It's a very common topic and a very common means word which is familiar to all of you. That is, verbs are nothing but the action words. Since class 3 and 4, we are studying about this topic, that is, verbs are the words that shows action. The words which shows action in any sentence is called a verb. The verb means action. Simply you have to remember verb means action. Now what this action means, ये जो action word है इसका मतलब क्या होता है? Simply आप अपने आप से कुछ questions पूछिए, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग. तो दिस टीचिंग वर्ड इज अ वर्ब. जब कभी भी आपको डाउट हो कि ये वर्ब क्या होता है तो अपने आप से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए कि मैं क्या कर रहा हूं या आप क्या कर रहे हैं या वो लोग क्या कर रहे हैं. व्हाट द आंसर यू विल गेट कि वो लोग, मैं या आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं और इसी क्रिया या काम को हम लोग एक्शन कहते हैं और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम लोग उसको वर्ब कहते हैं. तो आई थिंक ये वर्ब क्या होता है ये आपको क्लियर है. वर्ब इज नथिंग बट द वर्ब दैट वी डू और दैट समवन एल्स डू. इसका हिंदी होता है क्रिया. व्हाट इज दैट? क्रिया, जिसको हम लोग काम भी करते हैं. आप क्या काम कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड योर verb. I hope so this is clear to everyone. Now let's move further. Okay, so we have learned कि ये action words क्या होते हैं. Means action means क्रिया या काम. जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं that are called verbs. अब ये वर्ब बहुत ही पेचीदा टॉपिक है. पेचीदा टॉपिक इसलिए है, बहुत आसान भी है और बहुत पेचीदा भी है. पेचीदा कैसे है और आसान कैसे है, चलिए हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. नाउ इन आवर एवरीडे लाइफ, न जाने सुबह से लेकर के रात तक में हम कितने वर्ब्स, कितने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग, पानी पीना या कुछ भी पीना, चाय पीना, दैट इज अ वर्ब. Then sleeping, it's an example of verb. Then eating, it's also an example of verb. So a lot many verbs are there. And for example, there are many words such as helping. If I take the word, आप किसी की help कर रहे हैं, that is also a verb. I am teaching you, that is also a verb. Okay, you are presently reading a book, that is also a verb. So a lot many more words are there. Finally what we conclude that all the words which shows the action are called verbs. Okay, मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम वर्ब किसको कहते हैं. बच्चा सामने बैठा हुआ है. Okay, now the next thing about the verb is that these words can stand alone. इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? वर्ब वैसे वर्ड्स होते हैं दे कैन स्टैंड अलोन. मीन्स अगर आप किसी भी वर्ड को लिखिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग ईट. ईट वर्ड अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है. लेकिन अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं हैज, क्या इसका अपने आप में कोई मीनिंग है? नो, अपने आप में कोई मीनिंग नहीं. एंड ईट मतलब खाना. तो जितने भी वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स,
दे हैव द कैपेसिटी टू स्टैंड अलोन। वो अपने आप में अपना अर्थ कॉन्वे करते हैं। बट देयर आर सम वर्ड्स which cannot stand alone. So the next thing which we have learnt about the verb is that verb are the words which can stand alone. There are different types of verbs that are main verbs. Kindly note it down in your copy. Different types of verbs that are main verbs, helping verbs, transitive verbs, intransitive verbs, finite verbs and non-finite verbs. Okay, note down main verbs, helping verbs, transitive verbs, intransitive verbs and finite verbs and finally non-finite verbs. Now we will see one by one. अब एक एक करके हम देखेंगे कि ये main verbs क्या होते हैं, helping verbs क्या होते हैं, transitive verbs क्या होते हैं, intransitive verbs क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। ओके, नाउ कम टू द मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स आर द रियल वर्ब्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। यही रियल वर्ब्स हैं। मेन वर्ब्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब्स, मींस वैसे वर्ड्स जो आपको एक्शन शो करते हैं, दे आर कॉल्ड मेन वर्ब्स आल्सो। फॉर एग्जांपल योर इट वाज योर eat, sleep, अभी आपने देखा पिक्चर्स में भी, then drink, these all are the words which are called main verbs. These words they can stand alone, they have their own meaning as well as they shows the action and that is why they are called the main verbs. तो फाइनली यहाँ तक में बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, verbs क्या होते हैं, verbs are the action words. Next, they can stand alone, means they have the capacity to demonstrate their own meaning, or finally they shows the action. For example, अभी आपने पिक्चर भी देखा था, eat का, sleep का, drink का, तो इन सब वर्ड्स का अपना एक मीनिंग होता है और ये एक्शन शो करते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, we say it as main words. Now moving to the next, we have helping verbs also. Now what are these helping verbs? Helping verbs are those words which shows the action, time of action. Action हो रहा है, ठीक है। For example, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ eat. eat का मतलब होता है खाना, मैं खाना खा रहा हूँ, खाया, खा चुका हूँ। ये सारे चीजों को जो वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि वो एक्शन का टाइम क्या था, द टाइम ऑफ एक्शन, एंड दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। मतलब हेल्पिंग वर्ब्स हमको क्या बताते हैं, दे शो अस द टाइम ऑफ एक्शन। व्हाट दे शो अस, दे शो अस द टाइम ऑफ एक्शन, कि वो जो एक्शंस हुआ है वो किस टाइम में हुआ है। टाइम हमारे पास 3 होते हैं, दैट इज वी नो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यही 3 टाइम हमारे पास होते हैं, बीता हुआ कल, आज और आने वाला। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का काम ये होता है कि आपको टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताते हैं कि जो एक्शन हुआ, ये जो खाने का काम हुआ है, ये कब हुआ, पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स आल्सो। फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग ही इज eating. I have written he was eating. और फिर मैंने लिखा he will be eating. अब आप समझने की कोशिश करिए, ये जो eating वर्ड्स है, यहाँ 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 तीनों eating वर्ड्स है, they are main verbs. एक्शन शो कर रहे हैं तीनों, खाने के काम को शो कर रहा है तो दे आर मेन वर्ब्स।
but try to understand about this is, was and will. ये is, was और will, they are helping verbs and they are showing the time of action. According to the first sentence, वह खा रहा है, मतलब काम प्रेजेंट में चल रहा है. According to the was, he was eating, वह खा रहा था, मतलब कि वही काम पास्ट में है. And he will be eating, according to this will be, वह खाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये is, was और will be का काम क्या है, टाइम शो करना. बाकी तो सारा चीज सेम ही है, he सेम ही है, eating सेम ही है. डिफरेंस क्या हो रहा है, is का, was का एंड will be का. तो हेल्पिंग वर्ब्स का मेन काम ये होता है कि ये आपको शो करता है अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन. तो अभी तक हम लोग ये सीखे कि वर्ब क्या होते हैं. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. व्हाट आर द मेन वर्ब्स? मेन वर्ब मींस द वर्ड व्हिच शोज action. Okay, and what are the helping verbs? Helping verbs means the words which indicate about the time of that action, कि वो action कब हुआ है. Okay, now let's have some more. That is, तो अब ये helping verbs में बेसिकली जो helping verbs होते हैं उनको हम लोग be form of verb भी कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग क्या कहते हैं, बी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. आप बहुत सारे ग्रामर बुक्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें फिल अप द ब्लैंक्स की क्वेश्चंस आएगी और ब्रैकेट में लिखा रहेगा बी फॉर्म ऑफ वर्ब से उसको फिल अप करना. तो ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स एक्चुअली, ये जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू दीस थ्री पार्ट्स, दैट इज डू, डज एंड डिड, has, have, had, and your is, am, are, was and were. So the form of verb, that is do, does, did, has, have, had, and is, am, are, was and were. They are the be form. They are called be form of verbs and they are the helping verbs. तो फाइनली आज हम लोगों ने क्या सीखा बच्चे, कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब का क्या काम होता है, देन हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं एंड मेन वर्ब्स क्या होते हैं. लेट्स रिकैप आवर क्लास ऑफ द डे. दैट इज व्हाट आर वर्ब्स. वर्ब्स आर नथिंग बट द एक्शन वर्ड्स. वैसे वर्ड्स जो आपको एक्शन के बारे में बताते हैं कि सेंटेंस में कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सा काम हो रहा है. ओके, दे आर कॉल्ड वर्ब्स. नाउ दीज वर्ब्स हैव द कैपेसिटी टू स्टैंड अलोन. वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अपने खुद का मीनिंग होता है, उनको किसी की जरूरत नहीं होती है. द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि what are the different types of verbs. The different types of verbs are main verbs, helping verbs, transitive verbs, intransitive verbs, finite verbs and non-finite verbs. जिसमें से आज हम लोगों ने डिस्कस किया about the main verbs and helping verbs. मेन वर्ब्स क्या होते हैं, जो डायरेक्ट एक्शन को शो करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने इमेज में देखा था ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, हेल्पिंग, वॉकिंग, टीचिंग, रीडिंग एंड मेनी मोर. ओके, एंड हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो टाइम ऑफ एक्शन को बताते हैं. मेन वर्ब एक्शन को बताते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स टाइम ऑफ एक्शन को बताते हैं कि वो एक्शन किस टाइम में हुआ है. एंड हेल्पिंग वर्ब्स का जो मेन फॉर्म होता है दैट इज नोन एज बी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड लाइक दिस: डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, is, am, are, was and were. So this was our class of the day, and in the next class we will discuss about the transitive verb and intransitive. I hope all of you have read the thing. जिनको भी कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, they can post their comment on the YouTube channel from where you are watching this video. Thanks to all of you, and for the homework side, just revise the topic, learn about the topics, go through your books and try to find out
more and more verbs and the use of helping verbs. Okay, so let's end our class of today. Thank you everyone.